Hello everyone. Today we are going to study about community. And first of all, let's see what is a community. A group of population that coexist in an area and interact with each other. For this, let's see an example. In this image, you can see this is an image of a pond where several species are living in a pond. Here you can see the producer that are different rooted plants, and then these plants are eaten by some phytoplanktons and fish. They need phytoplanktons, also turtle and other organisms like frogs and other microorganisms also are living in this pond. Then these different organisms always interact with each other for their food or other requirement. Then these species with each other forms a community. Here this is example of a pond community, and we are seeing different type of animals living in the pond. So same other communities such as grassland, forest and TC. And the other point is it represents only biotic component. Means if we consider about this pond example, then here also water and soil and sunlight is present, but these are not the part of community. Only the living things are the part of community. Let's see what is a ecotone. The zone separating two different type of communities, such as consider example of river. River is forms a community where different aquatic animals and plants live. But behind the river, the of both sides of river, soil is present. But these soils are different from uh, the soil present far from the river. Means in the middle of the dry soil and the river, the soil are little swamp. That soil is favorable condition for different type of other organisms that do not live in a river or in dry soil. So that zone also forms a ecosystem and called as ecotone. Ecotone also called as transition zones, as in the name. Transition means transit two different type of ecosystem. Here are some examples such as mangrove forest that are ecotone present between marine and terrestrial ecosystem. The grassland present between forest and desert. Estuary between fresh water and salt water. Actually, when the river meets the sea is called estuary, because sea water is salty and river water is normal sweet water. So the river's water is favorable for some type of organisms for living, and the salty water is also favorable for some other type of organisms. But where the river meets the sea, some between that area the water is little sweet and little salty, means mixture of the both type of water.
that forms a uh, ecotone called estuary. And the other example is river bank or marshland between dry and wet condition. So now it's clear the ecotone is the transition zone that separates two different type of communities. Now let's see what are autotrophic communities. Autotrophic means where P by R is ratio is greater than 1. PR by is greater than. Here P is the production or the photosynthesis and R is the respiration loss. Means as plants do photosynthesis and produce the energy in the form of sugar molecule, and they conserve that energy, but during the process of photosynthesis they also need energy. Also for respiration and other requirements of plants they required the energy, that is called the respiratory loss. So after the process of photosynthesis, what the energy is formed by plants and what the energy required is respiration loss. So if the production is greater than R, means the loss, if the production is higher than loss, then P by R will be greater than 1 and plant will be autotrophic, and the whole community will be community when we will consider the whole plants in a community. So where the production is greater than respiratory loss is these plants are autotrophics, or when we talk about the community we will consider the whole plants in the community and we will calculate the whole the production by the plants and total loss by plants, and if their P is greater than R or P by R will be greater than 1 means the community will be autotrophic. Now what are heterotrophic? Like in the last example here, P by R is less than 1 means P will be less than R means production will be less than respiratory loss. Sorry, means P will be less than R means production will be less than respiratory loss. So here production is less than loss means the energy required for respiration and other things for survival will be greater than production, means what the energy will be produced by photosynthesis will be less than loss, means here input is greater than output, thus the community or plant will be heterotrophic. Now let's see what is resistance. Then as you can see, the ability of a community to avoid displacement is resistance. Let's see with an example. Suppose let's consider example of a grassland. तो एक ग्रासलैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ग्रासेस भी होती हैं, प्लांट्स स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ग्रास ऊपर्स,
स्मॉल कार्निवोर्स, एनिमल्स, फ्रॉग्स, ये सारे एनिमल्स होते हैं। तो सपोज़ कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर या किसी भी तरह का अनफेवरेबल कंडीशन आता है, सपोज लेट्स एग्जांपल ऑफ फ्लड, अगर वहाँ बाढ़ आता है तो डिफरेंट ऑर्गेनिम्स जो हैं या तो मोस्ट ऑफ देम विल बी किल्ड और दे विल बी डिस्प्लेस्ड बाय द दैट हैबिटेट। तो या तो वो मर जाएंगे या कहीं पानी के साथ दूर चले जाएंगे। तो वो जो कम्युनिटी है ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी ग्रासलैंड। बट जब भी पानी वहाँ वापस दोबारा से कम होगा या सूख जाएगा तो फिर से वो कम्युनिटी अपने पुराने स्टेट में रिटर्न होना चाहेगी। तो फिर से पहले ग्रासेस आएंगी, फिर स्मॉल प्लांट्स भी आएंगे, फिर ग्रास ऊपर्स और अदर एनिमल्स धीरे धीरे आएंगे। तो इट विल टेक अ टाइम। तो इफ़ द टाइम टू कम बैक in its original state will be less, means here means the resilience will be high। इसे हम अगले टॉपिक में देखेंगे रेजिलियंस के बारे में। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसको अगर रोक लेती है फ्लड्स, सपोज जैसे हमने ग्रासलैंड का एग्जांपल लिया, अगर वहाँ फ्लड आती है तो अगर वो डिस्ट्रॉय होने से खुद को रोक लेती है कम्युनिटी तो रेसिस्टेंस उसका ज़्यादा है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट से नहीं रोक पाती है तो रेसिस्टेंस कम है। मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू अवॉइड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट थिंग इज़ दैट, तो जो एबिलिटी है उसको अवॉइड करने का डिस्प्लेसमेंट, जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर या किसी भी तरह का अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और द एबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इज रेजिलियंस। मीन्स सपोज फ्लड आ चुका है तो वहाँ एनिमल्स ऑलमोस्ट या तो डेड हो गए हैं या फिर डिस्प्लेस हो गए हैं अपनी जगह से। तो बट फिर वो, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था कि वो कम्युनिटी फिर से रिटर्न होना चाहिए अपने पुराने स्टेट में। तो जब पानी वहाँ पे निकल जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर से ग्रासेस कुछ होंगी बची हुई या फिर नई ग्रासेस आती हैं, फिर उसके बाद दूसरे एनिमल्स भी आएंगे। तो इस तरह से वो कम्युनिटी दोबारा से फॉर्म करेगी। और ये अगर ये जितना फास्ट होगा या प्रोसेस तो रेजिलेंस उतना बेटर होगा उसका। मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। बट अगर ये प्रोसेस लेट होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो उसका रेजिलियंस ज़्यादा होगा। तो हमने देखा कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर या अदर अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को बचाने की जो एबिलिटी होती है वो होता है रेसिस्टेंस किसी कम्युनिटी के लिए। और अगर डिजास्टर आ चुका है तो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, उसके बाद जो एबिलिटी होती है रिटर्न करने की अपने पुराने कंडीशन में, वो होता है रेजिलियंस। तो अगर ये फास्ट रिटर्न कर जाती है अपने स्टेट में दोबारा तो रेजिलियंस विल बी हाई। और अगर ये टाइम टेकिंग होता है तो रेजिलियंस विल बी लो। नाउ here you can see the complex communities have better resistance and poor resilience. How? The complex community, तो सपोज एग्जांपल लेते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है जहाँ बहुत ओल्ड और बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और हाईली डेवलप्ड होते हैं, और एनिमल्स भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, हाईली डेवलप्ड ऑर्गन बॉडी ऑर्गन्स होता है उनका। तो फॉरेस्ट कम्युनिटी एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है इन कंपैरिजन टू ग्रासलैंड। तो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो फॉरेस्ट विल बी टैकल बेटर, मीन्स वो ज़्यादा बेटर सर्वाइव कर पाएगी ग्रासलैंड की अपेक्षा।
सपोज फ्लड का एग्जांपल लेते हैं, अगर दोनों जगह फ्लड आता है तो ग्रासलैंड तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी फ्लड में, बट फॉरेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स अंदर तक होती हैं, वो ऑलमोस्ट बचे रहेंगे। कुछ एनिमल्स पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो वो बचे रहेंगे। तो इस तरह से वो कम्युनिटी काफ़ी हद तक बची रहेगी। तो मीन्स इसका क्या हो गया कि फॉरेस्ट हैविंग बेटर रेसिस्टेंस बट पुअर रेजिलियंस। मीन्स अगर ये डिजास्टर के बाद फॉरेस्ट भी सपोज दैट ख़त्म हो जाता है, ऑलमोस्ट डिस्प्लेस्ड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ग्रासलैंड भी, तो ग्रासलैंड वापस जब रिटर्न होंगे कंडीशन में तो ग्रासलैंड जल्दी रिटर्न होगा, क्योंकि ये लेस कॉम्प्लेक्स है। और ग्रासेस तो काफ़ी जल्दी 15 दिन, एक किसी भी बेयर लैंड पे आप लोग देखते हैं कि अगर वो खाली है, कोई प्लांट नहीं है, तो बिटवीन 15 डेज टू 1 मंथ ग्रासेज आनी शुरू हो जाती हैं। ग्रासेज आएंगे, फिर ग्रास ऊपर से आएंगे, फिर उनको खाने के लिए एनिमल्स, कार्निवोर एनिमल्स आएंगे, तो एक कम्युनिटी बहुत जल्दी फॉर्म कर जाएगी। बट ये फॉरेस्ट जो है, जो जिसमें कई पेड़ हज़ारों साल पुराने होते हैं, एनिमल्स काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं बॉडी ऑर्गन, तो उन एनिमल्स का अगर नंबर भी कम हो जा रहा है तो वो फिर से वापस उस पॉपुलेशन को गेन करने में काफ़ी टाइम लगता है। सब जैसे कि हम लोग देखते हैं लायन या टाइगर्स का नंबर कम हो रहा है, तो वो वापस से अपने पुराने पॉपुलेशन को अचीव करना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट एक ग्रासलैंड में जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी अपने पुराने नंबर्स को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ हैव बेटर रेसिस्टेंस एंड पुअर रेजिलियंस। Like in same way, K-selected species communities have better resistance and poor resilience. How? Then K-selected species are more complex than R-selected species. Also, they have highly developed body organs. तो K-selected species की जो कम्युनिटी होगी वो रेजिस्टेंस तो बेटर होगा बट रेजिलियंस पुअर होगा। सेम लाइक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ की हम बात कर रहे थे, तो के सेलेक्टेड भी स्पेसीज भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ ही फॉर्म करती हैं। अभी देखते हैं रेजिलियंस हम लोगों ने देखा द एबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने देखा था। अभी लेस कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ हैव बेटर रेजिलियंस एंड पुअर रेसिस्टेंस। ये भी हमने देखा कि कैसे ग्रास लैंड लेस कॉम्प्लेक्स है तो उसका रेजिलियंस मीन्स रिटर्न होने की एबिलिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा होगी, तो इसलिए रेजिलियंस ज़्यादा होगा बट रेसिस्टेंस पुअर होगा, क्योंकि जब कोई डिस्ट्रक्शन अवॉइड करने की उनकी एबिलिटी कम होगी क्योंकि लेस कॉम्प्लेक्स है। अभी आर सेलेक्टेड स्पीसीज कम्युनिटी हैव बेटर रेजिलियंस एंड पुअर रेजिस्टेंस। तो ये तो सेम वही बात है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज का बॉडी ऑर्गन्स लेस स्पेशलाइज्ड होता है, वो लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिम्स होते हैं, उनका नंबर काफ़ी जल्दी इंक्रीज करता है और काफ़ी जल्दी डिक्रीज भी करता है, तो उनका रेजिस्टेंस पुअर होगा। और रेजिलियंस मतलब वापस आने की एबिलिटी जो होगी डिस्ट्रक्शन के बाद वो तो ज़्यादा होगी, क्योंकि देखते हैं इंसेक्ट्स जो आर सेलेक्टेड का एक एग्जांपल है, बहुत जल्दी ग्रो होता है। अभी व्हाट आर डोमिनेंट स्पीसीज, तो डोमिनेंट स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जिनका किसी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा नंबर या फिर बायोमास होता है और वो अदर ऑर्गेनिज्म अदर स्पीसीज के ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। तो सपोज एक ग्रासलैंड का एग्जांपल लेते हैं, तो ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा तो ग्रासेस ही होती हैं ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे ग्रास डोमिनेट करेगी। तो जैसा कि क्लियर है कि या तो उनका नंबर या फिर बायोमास, जैसे किसी पॉन्ड में अगर अलगल बूम आया हुआ है तो वहाँ पे अलगी का जो पॉपुलेशन होगा या बायोमास होगा, क्योंकि उनको तो काउंट नहीं कर सकते, तो बायोमास के टर्म में उनका बायोमास काफ़ी ज़्यादा होगा बाकी स्पीसीज़ की तुलना में। तो
वहाँ पे डोमिनेटिंग स्पीसीज होंगी अलगी। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका। तो वेट वुडलैंड इन वेस्टर्न यूरोप में डोमिनेटिंग ट्री जो है वो एल्डर होता है, एंड मैनग्रोव जो है वो टाइडल स्वैम्प्स ट्रॉपिक्स में जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे डोमिनेट करता है। तो ऐसे ही डिफरेंट स्पीसीज हैं डिफरेंट कम्युनिटी में जो डोमिनेट करते हैं, जिनका नंबर या बायोमास सबसे ज़्यादा होता है और अदर स्पीसीज के ग्रोथ को इम्पैक्ट करती हैं। अभी देखते हैं की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं। तो जैसा कि डोमिनेंट स्पीसीज में हमने देखा कि क्योंकि उनका नंबर या बायोमास सबसे ज़्यादा है इसलिए वो इम्पैक्ट करती है दूसरे स्पीसीज के ग्रोथ को, तो वो डोमिनेटिंग होती है। बट की स्टोन स्पीसीज वो ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका नंबर या बायोमास ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा हो सकता है वो सबसे कम भी हो, बट फिर भी वो दूसरी स्पीसीज या कम्युनिटी को इम्पैक्ट करती हैं। तो जैसा हमने देख रहे हैं, द स्पीसीज डिस्पाइट ऑफ दियर नंबर और बायोमास, मतलब उनका नंबर या बायोमास मैटर नहीं करता है वो ज़्यादा है या कम है, फिर भी वो डिटरमाइन करती हैं स्पीसीज स्ट्रक्चर को। वैसी स्पीसीज की स्टोन स्पीसीज होती हैं। तो इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे जैसे एक ये अफ्रीकन एलिफेंट है जो वुडलैंड कम्युनिटी का एक एनिमल, अफ्रीकन एलिफेंट, वो वहाँ की स्टोन स्पीसीज है। तो ये एलिफेंट करती क्या है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी टहनियों को ये अपने सूंड से तोड़ तोड़ के ज़मीन पर गिरा देती है। ये इनका नेचर ही होता है। जो डालियाँ होती हैं पौधों की, उनकी डालियों और बड़े पेड़ की, उनको तोड़ के ज़मीन पर गिराती हैं। तो वो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उस कम्युनिटी में, जो कि उस कीड़े जो ज़मीन पर गिर जाती तो उनके पहुंच में आ जाते हैं, जो छोटे एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं, तो उनको खा के वो सरवाइव करती हैं। तो ये अफ्रीकन एलिफेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है उस वुडलैंड कम्युनिटी में, जिसकी वजह से जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर पाती हैं, उनको फूड मिल पाता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ लार्ज मैमल्स प्रीडेटर्स जैसे टाइगर, लायन। तो ये क्या करती हैं, ये दूसरे कार्निवोर्स या एनिमल्स को भी खाती हैं और उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करती हैं। जैसे तो जिसकी वजह से एक डिफरेंट जो फूड चेन या फूड वेब में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं उनका नंबर मेंटेन रहता है। और थर्ड एग्जांपल है सी ऑटर्स। तो ये सी ऑटर्स क्या करती हैं, वो सी अर्चिन्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से केल्प फॉरेस्ट जो है जो सी के अंदर में होता है वो बचा रहता है। अगर ये सी ऑटर्स नहीं होंगी तो सी अर्चिन्स का नंबर बहुत इंक्रीज कर जाएगा और ये केल्प फॉरेस्ट उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये सी ऑटर्स का नंबर तो कम होता है, बट क्योंकि वो सी अर्चिन के पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं जिसकी वजह से वो कम्युनिटी बची रहती है। तो की स्टोन स्पीसीज आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि की स्टोन स्पीसीज का नंबर या उनका पॉपुलेशन या बायोमास कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो सकता है, बट कम होने के बावजूद वो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक डिटरमाइन करती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। थैंक यू।